sum for model. Okay, now we'll write the formulas. So first formula is price of the share. So price of the share at the end of the year. Okay, so at the end we call it as P1. Is that clear? Is that clear? P0 is the beginning of the year. Is that understood? Yes, sir. Okay, so price of the share at the end of the year. So this is the price of the share. Okay, P1 is equal to P0 minus D1. Understood? अभी इसमें क्या क्या दिया है वो देख लो. At the end of the year, any price which is given to you? Any price which is given to you? Yes, sir. KE. तो करंट दिया है ना. P0 क्या है? P1 is ending price है. ठीक है, P0 क्या है? करंट प्राइस है. Current price. Yes, sir. तो P0 कितना है? Is that clear? Yes, sir. करंट दिया है ना ये. समझ में आया कि नहीं? Yes, Is that sir. understood or not? Is it clear? So price of the shares at the end of the year is 21. Correct? So P1 is equal to 21. समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now the next one, next part. So amount of finance required. We'll calculate the amount of finance required. Okay, now itself for a new investment of 6,80,000, you already have how much? 1,50,000. Yes or no? Yes. Okay. Now how much is the amount of finance required? How much amount do we require? We'll already have 6,80,000. Plus we will add up dividend, because if we don't declare dividend, right, or even if we have to give dividend, we require money, right? And what about so earnings is how much? 1,50,000. So we have to less that. Yes or no? Because that is already what we are having. 1.5 लाख हमारे पास already है ना. Yes, sir. तो इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लस डिविडेंड वो भी चाहिए, राइट. लेकिन माइनस क्या करेंगे? अर्निंग्स, क्योंकि वो है ऑलरेडी है हमारे पास. तो इन्वेस्टमेंट कितने का करना है? 6,80,000. डिविडेंड कितने का देना है? 1 लाख. अर्निंग्स ऑलरेडी कितना है? 1,50,000. मतलब नेट टू नेट हम लोग को और कितना फाइनेंस चाहिए? 6,30,000. Is it clear? Is that Yes, sir. yes? Now how much number of shares we need to issue? कितना शेयर इशू करना चाहिए? Is equal to amount divided by what we will divide with? P0 or P1? P0 or P1? P0 or P1? P0 सर. क्यों P0 बेटा? P1 निकाला ना हम लोगों ने. कैलकुलेशन P1 का किया तो P1 बिकॉज हम लोग व्हाट वी आर फाइंडिंग कि ईयर एंड में हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बिगिनिंग में ही थोड़ी कर रहे हैं इन्वेस्ट. Yes, sir. तो ये प्राइस चेंज होने के बाद हम लोग इफेक्ट कर रहे हैं ना. डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर कर रहे हैं. अंडरस्टूड? तो अमाउंट कितना है? 6,30,000. उसको डिवाइड करो 21 से तो कितना आ रहा है? 30,000 शेयर इशू करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Sir. Who is this? So now what is the market value of the firm?
What is the market value of firm? Simple. Number of shares. Number of shares into MPS. अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? ऑलरेडी अभी हम लोग नया इश्यू कितना करने वाले? 30,000 का. ऑलरेडी कितना है? Already how much number of shares are you having? Yes. 3,000. कैसे? 3,000 तो अभी मिला है, नया इश्यू करना है. New shares to be issued is 3,000. New issue is 3,000. We have to issue 3,000 shares. What about old? Old equity कितना है हमारे पास? देखो ना इधर. 20 लाख का उसका मार्केट वैल्यू है. Divided by 20. You have 20 lakh. Divided by 20. How much are you having? 1 lakh shares. Yes or 2 no? lakh. 1 lakh ना? हाँ. Yes. 1 lakh. 1 lakh. 20 lakh divided by 220. So new तुम्हारे इक्विटी ओल्ड कितने तुम्हारे पास? 70,000 सर. 1 लाख है बेटा. अरे हाँ, सॉरी सर. तो टोटल कितना हो गया ये? 1,30,000. तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स ये कितना आएगा यहाँ पे? 1,30,000 1,30,000. इंटू 21. ये 21 लिया ना हम लोग ने, तो इसलिए 21. तो इसका एमपीएस के हिसाब से इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 27,30,000. ठीक है. अब ये कब हो रहा है? ये जब डिविडेंड दे रहे हैं हम लोग तभी हो रहा है. ये दिख रहा है डिविडेंड दिया है. सो दिस इज द फर्स्ट वन. अजम्पशन क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है. अंडरस्टूड? Is that understood? You will do the same things, okay, but you will consider that when dividend is not declared. Okay, so when dividend is not declared, what will you take dividend as? जैसे यहाँ पे dividend में तुमने D1 में क्या लिया था? When dividend is declared, तुमने क्या किया? D1 को तुमने 1 लिया. When dividend is not declared, D1 को तुम लोग क्या लोगे? What you will take? हेलो. Yes sir. क्या लोगे? यस क्या लोगे? डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 1 रुपया जो था वो लिया. नहीं लिया है तो क्या लोगे? So 0. Okay, so you will do the same thing again. What was done, whatever is done, you will do the same thing again, but instead of that you will take 0. So you will solve this price of the share at the end, but you will take this as 0. Is that clear? Can you give me the answer? Yes sir. ठीक है, मुझे P1 का आंसर बताओ. The answer for P1. Sir 20. कितना आ रहा है? 22. Okay, एक मिनट. Yes sir. 22 आंसर आ रहा है. 22. ठीक है. नाउ सेम वे अभी क्या करोगे? अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड. अब इसमें डिविडेंड लगेगा क्या? अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड में सर 0 होगा ना? डिविडेंड तो 0 हो जाएगा. Yes लेकिन sir. फाइनल आंसर क्या आएगा? अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड कितना आएगा?
सिर्फ 1 लाख 5 lakh माइनस हो 30,000. जाएगा ना सर? कितना आएगा? 5 लाख 30,000. 5,30,000 आएगा. वेरी गुड. नंबर ऑफ शेयर्स. कैलकुलेशन करो, सॉल्व भी करो साथ में. Yes sir. $24,090 sir. कितना? 24,090. अब एग्जिस्टिंग Yes, sir. कितना है? एग्जिस्टिंग कितना है? एग्जिस्टिंग न्यू वाला एक टेबल बना दो. एग्जिस्टिंग कितना है? अरे कितना है एग्जिस्टिंग? 20 लाख डिवाइड बाय 20 कितना होता है? 1 लाख. यस सर. तो ये ओल्ड हो गया. अभी तुमने न्यू कितना निकाला? हाउ मच वाज न्यू? 24090. बराबर. तो 1 लाख को 1 प्लस lakh करो to- उसके साथ. Yes sir. किया. तो कितना हो गया? 1,24,090. तो नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे पास कितने हैं? 1,24,090 और मल्टीप्लाई करो एमपीएस से. मार्केट वैल्यू निकालो फर्म का. एमपीएस कितना है? एमपीएस इज 22. हाँ, योर एमपीएस इज 22. यस सर. हाँ, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 27,30,000. सो अंडरस्टूड. दोनों का वैल्यू Yes, सेम आ sir. रहा है. सर. दोनों का वैल्यू सेम. 27,29,980. हाँ, मतलब Sorry. वही ना. हाँ सर. 27,30,000. तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है क्या? यस सर. सो वी डिड 2 केसेस. 2 केसेस हमने किया. एंड 1 वी डिड डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके सेकंड डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ. सो इन बोथ द केसेस व्हाट वी आर फाइंडिंग? इन बोथ द केसेस व्हाट वी आर फाइंडिंग? अरे क्या हो रहा है? मार्केट वैल्यू क्या है दोनों का? Yes people, what is the market value in both the cases? Yes, Bhumi, Anchal, Durga, Rajesh, Rishikesh. In both the cases, the value is coming to be same. So what do we interpret from this? What is the interpretation? What is the interpretation? Can anyone please reply? Both the values are same. Whatever you got now, whatever we have solved, first one. Are you getting it? What I'm trying to say? Yes sir. डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया होता है तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता है मार्केट प्राइस में. हाँ, इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा है. इतना उतना कुछ हाँ. नहीं है उसके अंदर. मतलब वो सेम ही है दोनों. Even if you declare Yes, the sir. dividend, you don't declare the dividend, your market value of the share of the firm is remaining the same, constant. So irrespective of what is Yes, sir. happening to your number of shares and market price, whether it is falling or increasing, it doesn't really matter because the No. market value is constant in both the cases. So if company wants to decide whether they want to give the dividend or do not give the dividend, that's completely acceptable. दोनों में से कोई भी एक पॉलिसी एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लोग, एज पर मॉडिग्लानी मिलर. ओके, सो वी हैव डिस्कस 3 डिफरेंट मॉडल्स. हमने 3 डिफरेंट मॉडल डिस्कस किए हैं, पता है ना? सो फर्स्ट वन में क्या है? फर्स्ट वन वॉल्टर मॉडल है. ठीक है, वॉल्टर मॉडल के 3 डिफरेंट अजम्पशंस है. गॉर्डन का अपना डिफरेंट अजम्पशन है, मॉडिग्लानी मिलर का डिफरेंट अजम्पशन है. इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. Clear. यस सर. ठीक है. So what we'll do is we'll solve some more sums now. तीनों के अभी तीनों मॉडल कंप्लीट हो गए. तीनों के हम लोग थोड़े सम्स सॉल्व करते हैं. मैं तुम लोगों को सम्स भेजता हूँ अभी. भूमि, I'll just send you this sums. क्वेश्चन भेजता हूँ. Yes, तीनों sir. के एक क्वेश्चन भेजता हूँ, अपने ग्रुप में डाल दो. ठीक है. इन द मीन टाइम व्हाट यू डू इज यू रीलॉग इन बैक अगेन. 2 मिनट्स ही है ना, तो आप लोग रीलॉग इन Yes, कर sir. लो. यस सर. इन द मीन टाइम I'll send the questions.